Hello dear student, today vector lecture number 2. So here topic is the resolution of vector in its component, right? कि वेक्टर का रेजोल्यूशन होगा उसके कंपोनेंट में. किस तरह से है, जस्ट फोकस हियर कि फॉर एग्जांपल सपोज यहाँ पर हम कंसीडर कर रहे हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड यू कैन से इट इज अ वेक्टर ए. ओके, इट इज व्हाट, वेक्टर ए. नाउ व्हाट कि फ्रॉम हेड एंड टेल वी ड्रॉ परपेंडिकुलर on x-axis and y-axis. बराबर, परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे, राइट? यू कैन से इट इज अ p, q is a vector a, so p dash, q dash, intersection is m. You can say it is a p double dash, q double dash, right? Here the angle is theta. What is the angle? Angle with x axis is theta. So a vector का जो प्रोजेक्शन होगा x axis पर, that is what p dash q dash. तो p डैश q डैश को हम कहेंगे ax. क्या कहेंगे हम? ax, राइट? एंड वी कैन से p डैश q डैश इज इक्वल टू pm. यू कैन से इट इज ऑल्सो ax. नाउ इट इज अलोंग x एक्सिस, सो आई कैन प्लेस i कैप. नाउ इट इज व्हाट, वेक्टर. तो अगर खाली ax है, so what is the ax? Ax is a scalar component of vector A along x-axis, and suppose I say Ax into I cap, that is what? It is a vector component of vector A along x-axis. क्या कहेंगे हम? You can say Ax into I cap, that is a vector component of vector A along x-axis. Similar way, qm, that is equal to p double dash q double dash, and what is the p double dash q double dash? That is what, ay. What is the ay? Ay is the scalar component of vector A along y axis. So p double dash q double dash, that is the mq. तो यहाँ पर अगर हम ड्रॉ करते हैं, so you can say ay into j cap, right? So here what is the ay into j cap? That is vector component of vector A along y axis. What is it? Vector component of vector A along y axis. That means friends, make it very clear कि स्केलर कंपोनेंट है, दैट इज द मैग्नीट्यूड और वैल्यू ओनली, एंड वेक्टर कंपोनेंट है, दैट इज द मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन बोथ. क्या कहेंगे हम? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों आ गए इसमें, बराबर है? दैट मीन्स अगर मुझे कोई वैल्यूज फाइंड करनी है तो आई विल कंसीडर इट्स स्केलर कंपोनेंट, बराबर है? चलो, नाउ इन ट्राइंगल QMP अप्लाई ट्राइंगल लॉ. तो ट्राइंगल लॉ लेक्चर 1 में देखा हमने, दैट इज अ टेल हेड, सो इट इज अ रिजल्टेंट. दैट इज सपोज यहाँ पर हम ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई करते हैं, सो व्हाट यू कैन से अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, you can say PQ vector is equal to PM vector plus MQ vector. What is the PQ vector? A vector
इज इक्वल टू ए एक्स इंटू आई कैप प्लस ए वाई इंटू जे कैप होगा. व्हाट इज द ए वेक्टर? दैट इज ए एक्स इंटू आई कैप प्लस ए वाई इंटू जे कैप. Right? So it is the resolution of vector. Now see, what is the x component? So suppose यहाँ पर हम cos theta apply करते हैं. So what is the cos theta? Adjacent upon hypotenuse. Cos theta is a value that is will consider scalar component. That is here you can say cos theta. What is the cos theta? ax upon a, that implies ax is equal to a cos theta. And what is the sin theta? ay upon a, ay is equal to a sin theta. What is the ay? ay is equal to a sin theta. मतलब हम कंसिडर करेंगे जो भी एडजेसेंट साइड होगी दैट विल बी cos थीटा एंड अपोजिट साइड होगी वो होगी sin थीटा. इट इज नॉट लाइक दिस के एक्स एक्सिस ऑलवेज कॉस थीटा होगा. राइट? कि फॉर एग्जाम्पल कि सपोज ये है हमारा वेक्टर ए. ओके, तो यहाँ पर एक्स एक्सिस पर ये थीटा बनता है तो एडजेसेंट विल बी कॉस थीटा. सो दिस कंपोनेंट विल बी ए कॉस थीटा एंड दिस कंपोनेंट विल बी ए साइन थीटा. चलो सिचुएशन चेंज हो जाती है कि सपोज यहाँ पर है वेक्टर बी और ये एंगल थीटा है. Okay, then what you can say, adjacent will be cos theta, that is a b cos theta, and its perpendicular is a sin theta, that is a b sin theta. So it is like this. जो भी एंगल का adjacent होगा वो रहेगा cos theta, उसके अपोजिट वाला होगा sin theta, right? So it is a b cos theta and it is a b sin theta, right? चलो, suppose I want to find out the magnitude of a. That is Pythagoras apply करते हैं. That means according to Pythagoras we can say pq square is equal to pm square plus mq square. What is the pq square? That is the magnitude of a whole square. pm square, that is what you can say ax square plus ay square. You can also say a square cos square theta plus a square sin square theta कह सकते हैं. So magnitude of a square, that is a ax square plus ay square. So what is the magnitude of a? You can say root of ax square plus ay square. ये होगा आपका मैग्नीट्यूड. दूसरा एंगल. चलो एंगल किस तरह से कहेंगे हम? सो सपोज आई से tan थीटा. सो फ्रॉम फिगर tan theta. What is the tan theta? qm upon pm. So tan theta, that is equal to ay upon ax. So theta is equal to tan inverse ay upon ax. Right? So it is a resolution of vector in its component. बराबर? मतलब यहाँ पर हमने ट्राइंगल लॉ अप्लाई किया है, एग्जैक्टली परपेंडिकुलर है. Thing is very easy. ax, that is a scalar component, and ax and into I vector component. ay scalar component, ayj that is a vector component. बराबर है? तो ये हुआ 2 डायमेंशन के लिए. अगर 3 डायमेंशन में है हमारे पास 3 डायमेंशन में है then what you can say, a vector is equal to axi plus ayj plus azk. And what is its magnitude? So magnitude of vector a, that is the root of ax square plus ay square plus az square. ये होगा आपका 3 डायमेंशन के लिए. ओके, सो यहाँ पर मेन चीज़ कि एडजेसेंट इज ऑलवेज cos थीटा एंड इट्स परपेंडिकुलर इज sin थीटा. मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, दैट इज द रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर एंड थीटा, दैट यू कैन से लाइक दिस. ओके, फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं कि लास्ट टॉपिक में हमने जो देखा था वहाँ पर एग्जैक्ट था परपेंडिकुलर, बट सपोज वो परपेंडिकुलर नहीं है एंड सपोज इट मेक्स सम एंगल, तो वो केस में क्या होगा? So for example,
OP, you can say it is a vector A. PQ, you can say it is a vector B, right? PQ is your vector B. So triangle लो apply करें, tail head and it is your resultant, that is a resultant vector, that is what A vector plus B vector. अब ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो एक्स एक्सिस के साथ बीटा एंगल फॉर्म कर रहा है. ओके, ए वेक्टर 0 डिग्री पर है एंड यू कैन से जो यहाँ पर इंटरसेक्शन होता है एम पर और ये एंगल बना रहा है थीटा. बी वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है. ओके, चलो अब बी एंगल का हमने लास्ट टॉपिक में देखा था, वैसे एडजेसेंट विल बी कॉस थीटा. दैट मीन्स पी एम इज इक्वल टू क्या होगा, बी कॉस थीटा एंड एम क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, यू कैन से इट इज अ बी साइन थीटा. बराबर है. अब मुझे फाइंड करना है रिजल्टेंट वेक्टर. ओके, अब मैं कंसिडर कर रहा हूं ट्राइंगल क्यू एम ओ. कौन सा ट्राइंगल, क्यू एम ओ. Okay, see here. So in triangle QMO, what is the OQ square? That is equal to OM square plus MQ square. What is it? OM square plus MQ square. Simple है. ट्राइंगल QMO में रिजल्टेंट वेक्टर स्क्वायर इज इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस MQ स्क्वायर. नाउ सी व्हाट इज द OM. OM इज इक्वल टू OP प्लस PM. OM is equal to OP plus PM. So here you can say OQ square, that is the OP plus PM square plus MQ square. What is the OQ? That is the resultant vector R. So resultant vector R square, OP, that is a A, plus PM, that is a B cos theta whole square, plus MQ, that is a B sin theta whole square. Okay, now what friends, open the bracket, that is a magnitude of R whole square, A square plus 2AB cos theta plus B square cos square theta. सिंपल A प्लस बी के फॉर्म में A प्लस बी होल स्क्वायर का हमने यहाँ पर एक्सपांड किया है. A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, 2AB A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2AB cos थीटा प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. ओके, दैट इज इक्वल टू व्हाट, A स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा. यहाँ पर B स्क्वायर कॉमन निकलेगा ये दो टर्म में से, तो इनसाइड अ ब्रैकेट cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा. सो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. दैट इज व्हाट यू कैन से A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos theta. It is the magnitude of R whole square. So what is the magnitude of R? That is the root of A square plus B square plus 2AB cos theta. Right? So it is your answer. अगर एंगल बन रहा है then we'll apply this formula, that is the root of A square plus B square plus 2AB cos theta. अब सोचो सपोज यहाँ पर माइनस होता है, दैट इज A माइनस बी, तो वो केस में क्या होगा. सो A माइनस, यहाँ पर है A माइनस बी, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2AB cos थीटा. क्या हो जाएगा, प्लस की जगह पर माइनस 2AB cos थीटा. राइट, द थिंग इज वेरी थिंग. चलो सी, अब यहाँ पर जो रिजल्टेंट वेक्टर है
वो एक्स एक्सिस के साथ बीटा एंगल फॉर्म कर रहा है, राइट. सो हियर वी कैन से tan beta. What is the tan beta? QM upon OM. That is tan beta QM. What is the OM? OP plus PM QM. That is equal to what? B sin theta. OP that is equal to A plus B cos theta. इट इज़ योर tan बीटा. ओके, तो एंगल भी होगा. अब यही फॉर्मूला के लिए हम स्पेशल केस कंसीडर कर लेते हैं. ओके, यू कैन से स्पेशल केसेस, राइट. चलो, फर्स्ट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, कॉस थीटा कॉस 0 इज इक्वल टू 1. मतलब ये फॉर्मूला में कॉस थीटा की वैल्यू 1 रखनी है. देन व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर? रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. दैट मीन्स व्हाट यू कैन से रूट ऑफ a प्लस बी होल स्क्वायर. दैट इम्प्लाइज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर, दैट इज व्हाट a प्लस बी. अगर एंगल 0 है मतलब एक ही डायरेक्शन में है. सेकेंड केस, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, सो व्हाट इज द कॉस थीटा? कॉस 90 दैट इज इक्वल टू 0. कॉस थीटा 0, तो ये टर्म हो जाएगी 0. सो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर? रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. पाइथागोरस अप्लाई होगा. What is it? रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों परपेंडिकुलर है. थर्ड वन, दैट थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो हियर कॉस थीटा कॉस 180 डिग्री, दैट इज व्हाट -1. सो यू कैन से दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. दैट इज व्हाट? root of a minus b whole square. So resultant vector that is equal to a minus b if theta is equal to 180 degree. So it is one of the very important. ये सब हम न्यूमेरिकल्स में यूज़ करेंगे.